व्यूअर्स को तो व्यूअर्स का एक ही सवाल है ना, व्यूअर्स की एक ही सवाल है नीतीश कुमार आपके से। हाँ, हम आपके जो भी सवाल एक जवाब है। किसी भी चीज की सीमा होती है। हम लोगों को ये लग गया कि अब अगर हम साथ चलते हैं तो फिर हमें अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए, बिहार में हम लोगों ने जो कुछ भी किया, आप अपने रिसर्च पर आ जाते हैं तो या तो पहले आप सारे रिसर्च वर्क अपना सामने रख दीजिए, तो हम एक ही बार जवाब दें। लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने किया उसको जस्टिफाई करता है। जो 19 जून को हमारा कॉन्फिडेंस मोशन था, तो जो नारे लगाए गए बीजेपी के द्वारा, तो वो जस्टिफाई करता है। आप कहते हैं कि अभी कहां प्रोजेक्शन हुआ, इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर नहीं है। वो जो वहां का सीन था वो कोई पार्टी के कमेटी का सीन नहीं था। वो सीन इस बात का था कि लीडरशिप हैंडओवर किया जा रहा है, और फिर वैसी परिस्थिति में एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का अधिकार है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और आज के युग में उस दिन आपने ये कहा, इस दिन आपने वो कहा, उससे ये चीजें गवर्न नहीं होती। मगर ये चीजें गवर्न होगी कि जो हमारा स्टेटेड पोजीशन रहा है, अब उसके ऊपर इसके आगे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं दो सवाल है उस पे, दो सवाल है। प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि नीतीश कुमार इज अ सेक्युलर लीडर, और उन्होंने ये कहा कि इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, वी विल डिसाइड एज द सिचुएशन इवॉल्व्स। And you have said in response, the Prime Minister said I am secular, and you then said his statement has given me peace. That particular statement has given me peace. Because पहले उन्होंने कुछ और कहा था, आज वो कह रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ये भी कहा कि उन्होंने सच कहा, हाँ, और सच्चाई को स्वीकार किया। नीतीश कुमार जी, तो ये जो हमने कहा है कि इन रेफरेंस टू I understand, and now I want to come to a more critical issue, and this is the real issue I'm coming to. Nitish Kumar ji, I have had the pleasure of following your political career, and I have seen your graph go up. You've been a great administrator, a good minister, a very performing chief minister. The only question and the doubt, and I want you to clarify this so you can answer, is that is secularism a very easy slogan or a catchphrase which is used conveniently? Otherwise, why was Nitish Kumar quiet in 1998? Because I don't know if you saw this in one of the newspapers today. There's a very interesting quote of George Fernandez that comes to my mind. And George Fernandez said before the 1998 elections, how long are we going to keep the Babri Mosque as the cutoff date to decide our political activities in the country? How long are we going to treat any political party as an untouchable? December 6, 1992, demolition of Babri Masjid is considered a cutoff date. If that is a cutoff date, for how long will you hold on to that position? Now, George Fernandez was taking credit for ending the BJP's political untouchability. It was 1998, so he wanted the alliance together. I have two questions for you, Nitish ji. And if you answer this, then I will move on to the next question. Why was Nitish Kumar quiet? Why did he not tell George Fernandez in 1998 that Mr. George Fernandez, I completely disagree with your position about moving on from December 6, 1998? And if he did not say then how can he make the Gujarat riots now? Because today what people are saying is that Gujarat 2002 has become the new cutoff date in Indian politics today for Nitish Kumar. So why were you silent in 98, and how do you relate to 2002 now? जॉर्ज साहब क्या बोले, वो तो जॉर्ज साहब भी अगर स्वस्थ होते तो आपको जवाब देते। उनका तो, लेकिन जॉर्ज साहब बहुत कुछ बोलते थे। He was your, और ठीक है, you were very close to him, पार्टी प्रेसिडेंट, you worked together, you built the party. प्रेसिडेंट थे। लेकिन जॉर्ज साहब की सारी बातों को हम लोग बिल्कुल जैसा वो कहते थे उसको आत्मसात नहीं कर लेते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। आपने अगर ये बात आज कही है जी, मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, कभी वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर बाबरी डिमोलिशन पर मेरी राय जाननी है तो आपको लोकसभा में जो बाबरी मॉस्क के डिमोलिशन के बाद जो डिबेट हुआ है,
आप उस डिबेट को भी देखिए, मेरे भाषण को भी देखिए। आपने सारे अपने मतलब से आपको चूंकि कुछ बात रखनी है तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप जरा हमारे पार्लियामेंट में दिए गए मेरे भाषण को देखिए, सुनिए उसको। उसके ये ठीक है कि वो कोई लाइव टेलीकास्ट उस समय नहीं होता था जी, लेकिन जो उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, आज उसका आपको सीडी भी मिलेगा, ऑडियो विजुअल मिलेगा जी। वो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी तब तक जी। तो आप उसको देखें तो आपको मेरी फीलिंग का एहसास होगा। मैंने आपको कहा कि देखिए 96 में जो कुछ भी हुआ वो बिहार के कंटेक्स्ट में वोट के बिखराव को रोकने के लिए किया गया एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट था, जो अल्टीमेटली फिर बिहार में सरकार बनने के पहले केंद्र में एक सरकार बनी अटल जी की, जहां उनके साथ काम करने में कोई कठिनाई नहीं थी। तब जबकि हमारे कुछ बेसिक कंसर्न थे उसको एड्रेस किया गया। और यही नहीं, सबसे पहले समता पार्टी जरूर मिली और इसके बाद ही एलाइज मिलना शुरू हुए। मैं शिवसेना और अकाली दल की बात नहीं कह रहा हूं। इसके अलावे जो एक डेमोक्रेटिक और इस तरह की विचारधारा की पार्टी समता पार्टी पहले गई और समता पार्टी की इस बात को मान लेने के बाद ही उनको और एलाइज मिले जी। जरा इसके इस एस्पेक्ट को देखिए। नहीं, मगर आप सर्टेन चीजों को कोई कोट अनकोट उसको डालने से कोई उससे फायदा नहीं निकल, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप बेसिक इश्यूज को देखिए कि जब इन चीजों को स्वीकार किया गया और अटल जी की जो पर्सनालिटी थी और उनके काम करने का तरीका और उनके बारे में जो एक परसेप्शन देश भर में था, वो एक उदारवादी नेता का, बावजूद इसके कि उनका संघ का या बीजेपी का बैकग्राउंड है, लेकिन उनका जो अपना व्यक्तित्व था जी, या उनका बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर खेद प्रकट करना, ये सारी चीजें थी। तो एक कुल मिलाकर के लीडरशिप जो उस समय का था, उसने सबको एक मन में ये जिसको कहिए कि एक एश्योरेंस दिया, उनके काम से, उनकी पर्सनालिटी से एक एश्योरेंस हुआ और तब एलाइज मिले। ऐसे नहीं मिले। Nitish ji, let me tell you, the reason I am asking you the questions is because just like Narendra Modi is the poster boy of the BJP, अब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पोस्टर बॉय का ट्रांसलेशन, पोस्टर बॉय का ट्रांसलेशन क्या है, मतलब यू नो सिंबल। You are today, whether you like it or not, whether you accept it or not, or whether you show me great modesty, you, Mr. Nitish Kumar, are the poster boy of secularism. And hence, these questions will only be asked to you because of the position you have taken, and you are fully aware that besides one or two Congress leaders, not even any Congress leader has taken on Narendra Modi in the way that you have, and hence your relevance becomes much more, and these questions should be put to you. But I understand your answers as well. I have a few more questions. The other question which is repeatedly put to you, Mr. Nitish Kumar, is why did Nitish Kumar not resign after Godhra? Because you have said, and I have seen what you, that law and order is a state subject. But Mr. Nitish Kumar, if I am not mistaken, and since you tell me my research is up to your mark, in 1999 when the Gaisal railway accident happened, which I was reporting on as a reporter, more than 250 people had died, and you had resigned on moral grounds. Or you had at least put in your papers you had resigned on moral grounds. Yes, I resigned. My resignation So I'm was correct. first not accepted by the Honorable Prime Minister. Thereafter, I Yes. met him Yes. and we submitted my resignation. And thereafter, with my folded hands, I told him that please accept my resignation. Yes. I have gone there, I have visited Gaisal, and that impact is in my mind. I cannot work. So that is. Tell you. So it was complete railway failure. It was failure on railway part. Yes. So I have taken the moral responsibility, and thereafter he accepted my resignation. Yes, I remember So that. Gaisal is different thing. No. My question Yes. is this. And at that point of time, Mr. Nitish Kumar, many people had said that there was Lal Bahadur Shastri who resigned,
And now there's Nitish Kumar who's taking moral responsibility and putting in his papers. Whether it's accepted or not is something you don't have a control over. Right. Now the question is this. No, that was accepted. Why did you not resign after Godhra, one, and when your political rival at that time, he was ally, Ramvilas Paswan, resigned, you said that, I don't have the exact quote, but you said about Ramvilas Paswan, you said he's an opportunist and his decision has nothing to do with Gujarat. So my question to you, sir, is that why did you not take a high moral ground and resign after Godhra when you were railway minister? गोधरा से रेलवे का क्या मतलब? ये रेलवे एक्सीडेंट तो था नहीं. It does not relate to railway safety. But Ramvilas Paswan was not the railway minister. हम बता रहे ना, आपने जिनकी बात कही जरा डेट्स देख लीजिए. कब हुआ है गुजरात राइट्स और कब उनका रिजिग्नेशन हुआ है. दोनों इंसिडेंट के बीच में आप जरा अंतर को देख लीजिए. ह्यूज गैप है. ऐसा नहीं है कि कोई गुजरात में हुआ और उनका क्विक रिएक्शन आ गया. आप देख लीजिए, कहा जरूर गया, उन्होंने क्लेम जरूर किया, लेकिन कोई उनसे हम इशू ज्वाइन नहीं करना चाहते. लेकिन मैंने सिर्फ आपको इतना ही कहा, मगर ये देखिए कि आप फरवरी का ये गुजरात का इंसिडेंट है और उनका रिजिग्नेशन कब का है, जरा देख लीजिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इतना ही मेरा सजेशन होगा. इसलिए उनसे कंपैरिजन मत करिए. उन्होंने जो कुछ भी किया अपने ढंग से किया. मैं उस चीज से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं. लेकिन जहां तक गोधरा के ट्रेजेडी के बाद आप कह रहे हैं हमारी, तो ये रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था. और मैं तो वहां इमीडिएटली जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद हमने रेलवे के ऑपरेशंस को जो कुछ भी होता है रेलवे बोर्ड के लोगों के साथ और वहां के साथ लोगों ने देखा है कि ये ठीक से हो. हम तो जाना भी चाहते थे. देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप इस चीज को देखिएगा तो जरा बोथ साइड रिसर्च रखना चाहिए. जब ये बात लालू जी ने एज रेलवे मिनिस्टर लोकसभा में कही, तो अभी हमने कहा कि पॉइंट वाइज रिबटल उसका हमने दे दिया. तो ये चीजें हैं कि वो उसका सीधा मतलब कोई रेलवे से नहीं था. वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ. मगर ये है कि लेकिन जहां रेलवे का फेलियर था, ये रेलवे का फेलियर नहीं है.